आज हम रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ेंगे। रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र लिख सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज अ बॉडी of temperature, any temperature T1, then this will emit the energy in the form of radiations. This body will emit the energy in the form of radiations to this body. For example, this body is body B, this body is A, this body is at temperature T2. This body will also emit the energy in the form of radiations. That's why यह कहा जाता है कि every body at any temperature emit the energy in the form of radiations. तो हम यहाँ लिख सकते हैं all bodies at all temperature emits energy in the form of radiation, except body at absolute zero temperature. मतलब हर कोई बॉडी एनर्जी रिलीज करेगी, एनर्जी इमिट करेगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन फॉर्म सिर्फ और सिर्फ जीरो टेम्परेचर, यानी द बॉडी एट एब्सोल्यूट जीरो, यानी 0 केल्विन टेम्परेचर नहीं होना चाहिए उसका। अगर बॉडी का 0 केल्विन टेम्परेचर है तब ही वो रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी इमिट नहीं करेगी। अदरवाइज एवरी बॉडी, even if this body is 100 at a tremendous temperature, that is, for example, if I say 1200 Kelvin, and even this body has only 10 Kelvin temperature, this body at 10 Kelvin temperature emit the energy in the form of radiation. Some energy will be radiated from this B body to body A in the form of radiation energy, even though this temperature of this body is just 10 Kelvin and this body have a temperature 1200 Kelvin, but the amount of energy radiated, the intensity, the rate at which energy radiated is direct, कह सकते हैं, is more from body A to body B as compared to body B to body A. क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, वो देखेंगे किस लॉ के अकॉर्डिंग टेम्परेचर डिपेंडेंसी क्या है रेडिएशन एनर्जी की। द एनर्जी ट्रांसमिशन फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी विल बी हायर देन एज कंपेयर टू एनर्जी ट्रांसमिटेड और एनर्जी इमिटेड फ्रॉम बॉडी बी टू ए, एंड दैट्स व्हाई, क्योंकि इधर से एनर्जी ज्यादा ट्रांसमिट हो रही है, इधर से कम हो रही है, अल्टीमेट रिजल्ट इज दैट the net result of energy transfer from A to B will take place, or in another word we can say that the net energy transfer will take place from hotter body to cooler body, and that's why after some time this body will get cooled and this body will get heated. अब आगे आगे लिख सकते हैं, अब लॉ पर करते हैं, दी एनर्जी ट्रांसफर, द एनर्जी ट्रांसफर, हीट एनर्जी, बाय द वे, हीट एनर्जी ट्रांसफर बाय रेडिएशन, द हीट एनर्जी ट्रांसफर बाय रेडिएशन इज गवर्न बाय heat energy transfer by radiation is governed by Stefan Boltzmann law. Stefan Boltzmann law. Energy transmitted by radiation is governed by Stefan Boltzmann law. ये क्या है? दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, चाहे लिख सकते हैं इस लॉ के बारे में, according to this law energy emitted in the form of radiation from a black body
from a black body is proportional to the fourth power of its absolute temperature and directly proportional to surface area of body. One thing to be reminded is that यहां पर सरफेस एरिया से है, यानी बॉडी की जियोमेट्री, बॉडी की शेप पर भी सरफेस एरिया डिपेंड करेगा। जो टोटल सरफेस एरिया है उस पर बॉडी की एनर्जी ट्रांसफर डिपेंड करेगी। फॉर ब्लैक बॉडी एनर्जी इमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू टी की पावर 4 एंड अल्टीमेटली दिस इज रिटन एन एनर्जी transmitted by a black body. If I consider this body as a black body, then energy transmitted will be according to this formula sigma a t की power 4, where temperature, absolute temperature, that is in Kelvin. ध्यान रहे कि absolute temperature always in Kelvin and sigma is the sigma is known as Stefan Boltzmann constant. Stefan Boltzmann constant and its value is 5.67 into 10 to the power minus 7 watt per meter square Kelvin की 4. This is the energy transfer from black body. अब इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा सा ब्लैक बॉडी के बारे में भी जान लेना चाहिए हमें। ब्लैक बॉडी क्या है? इसका मतलब हमें ब्लैक बॉडी के बारे में भी जान लेना चाहिए। लिख लीजिए, मैं जब तक ऊपर ऊपर मिटा रहा हूं नीचे का नहीं मिटाऊंगा। ब्लैक बॉडी क्या है? ब्लैक बॉडी body which emits or absorb all wavelength of incident radiation, यानी जो बॉडी इमिट करे या एब्जॉर्ब कर ले, जितना भी उस पर जो एनर्जी फॉल की है पूरी की पूरी रेडिएटिंग एनर्जी को अगर वो एब्जॉर्ब कर लेती है तो उसे कहते हैं, या अगर कोई बॉडी इमिट कर रही है तो हर रेंज के वेवलेंथ में जो है वो एनर्जी इमिट करे तो उसे कहते हैं हम ब्लैक बॉडी। तो यहां पर कभी कभी ये एक पॉइंट समझाने की जरूरत पड़ती है समटाइम्स कि a thermally black body, need not to be black in color. कभी कभी ये लोगों को जो है कंफ्यूजन होता है कि क्या ब्लैक बॉडी कलर में ब्लैक होगी तो नो। फॉर एग्जाम्पल आइस इन सर्टेन कंडीशन ट्रीटेड एज अ ब्लैक बॉडी, it will absorb all wavelength of energy falling on this, but this is not in a black color. इसके बाद में एक रियल बॉडी की बात करनी चाहिए, क्यों ब्लैक बॉडी तो जाहिर सी बात है सभी नहीं होंगी, सभी एनर्जी को तो सभी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर लेंगी। तो उसके बाद में बात आती है रियल बॉडी की, दैट इज ग्रे बॉडी, उसे कहते हैं हम ग्रे बॉडी। जिसके बाद में बात आती है ग्रे बॉडी की या रियल बॉडी की, थोड़ा कैमरा मुझे लग रहा है डिस्टर्ब हुआ। ग्रे बॉडी
A body whose monochromatic emissivity, कहते हैं बॉडी की, a body whose monochromatic emissivity is constant. Monochromatic emissivity is constant, या ये कहें that is independent of wavelength. If the emissivity of the body is independent of wavelength, do not depend on the wavelength of the emitted radiation, then body is said to be gray body. इसका मतलब यहां से ये फिर एक बात चालू हुई कि आखिर ये एमिसिविटी क्या है, व्हाट इज दिस एमिसिविटी। तो एमिसिविटी को कुछ इस तरीके से समझिए आप लोग, एमिसिविटी, all bodies are not black bodies in nature, hence their emissive power is less than, hence their emissive power is less than black body. So यहां से कहते हैं एमिसिविटी क्या है, so the ratio of emissive power of gray body to the emissive power of black body at same temperature is known as emissivity. यानी एमिसिविटी एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं इज द एमिसिव पावर ऑफ रियल बॉडी अपॉन एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, दैट इज एमिसिव पावर ऑफ रियल बॉडी इक्वल टू होगी, यानी एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम रियल बॉडी इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू ई बी, वेयर एप्सिलॉन इज द एमिसिविटी ऑफ real body, that is emissive power of real body is equal to E sigma t की power 4, E sigma t की power 4, where sigma will depend on various factors. various factor body की surface कैसी है इस चीज पर भी डिपेंड करेगी, emissivity of the body will depend on various factors. उसके बाद में आप बात करते हैं फिर ये इसकी बात हुई तो मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर, ये इसका मतलब आपको ब्लैक बॉडी की अगर एमिसिव पावर निकाल सकते हैं उसी टेम्परेचर पर आप रियल बॉडी की ग्रे बॉडी की एमिसिव पावर भी निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद में अगली हेडिंग दीजिए मोनोक्रोमैटिक एमिसिव पावर, मोनोक्रोमैटिक एमिसिव पावर हेड लिखिए, द रेडिएंट एनर्जी, द रेडिएंट energy emitted by the radiant energy emitted by a body per unit time, emitted by a body per unit time per unit area
and per unit time and per unit area at particular wavelength. पर यूनिट एरिया से मुराद है यहां पर सरफेस एरिया, पर यूनिट एरिया एट पार्टिकुलर यानी यूनिक वेवलेंथ एंड टेम्परेचर, यानी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ और टेम्परेचर पर जो एनर्जी इमिट कर रही है बॉडी, तो उसकी उस एनर्जी इमिशन को कहते हैं हम मोनोक्रोमैटिक एमिसिव पावर। मोनोक्रोमैटिक एमिसिव पावर यानी ई लैम्बडा की अगर बात करें हम, तो ई लैम्बडा इक्वल टू एप्सिलॉन लैम्बडा इनटू सिग्मा टी की पावर 4। यहां से आपको ये समझ में आएगा कि एप्सिलॉन लैम्बडा इज द मोनोक्रोमैटिक एमिसिविटी, मोनोक्रोमैटिक एमिसिविटी। फिर उसके बाद में आपको पढ़ाना है मुझे वीन्स लॉ। Wien's law or sometime it is known as Wien's displacement law. Wien's law or Wien's displacement law. According to this law, as temperature of black body increases, the temperature of black body increases, the most of radiation from body shifted, ध्यान दीजिए इसीलिए कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, शिफ्ट होता है, डिस्प्लेस शिफ्टेड टुवर्ड्स स्मॉलर वेवलेंथ। एंड इसका मतलब दैट इज वाई ये है कि लैम्बडा, इसका मतलब ये हुआ कि लैम्बडा जो एम है, वेवलेंथ इज प्रोपोर्शनल टू 1/t फॉर मैक्सिमम रेडिएशन। यानी यहां से ये हो सकता है कि लैम्बडा इनटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट विच इज नोन एज वीन्स कांस्टेंट, एंड समटाइम्स इट्स वैल्यू इज, इसकी वैल्यू कभी कभी हम जो है कुछ लिख देते हैं 2.989 m के केल्विन माइक्रो मीटर केल्विन। (2.989 into 10 to the power -3 मीटर केल्विन इस कांस्टेंट की वैल्यू, and this is known as Wien's displacement law या Wien's law। इसके बाद में बहुत छोटा सा टॉपिक और है, उसको छोटी सी वीडियो बनाने का मेरा कंसेप्ट है, तो छोटी सी वीडियो बना करके मैं प्लेस कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा और इस रेडिएशन का रह गया है, वो अगले वीडियो में मैं छोटे से वीडियो में तुम लोगों के लिए पोस्ट कर दूंगा, तो जल्दी से इसे पढ़ डालिए इस तरीके से। ये जो भी अगर आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन हो तो व्हाट्सएप मुझे कर दीजिएगा।